So very good evening to everybody. I hope you've read this definition of FM, right? I think I forgot to share the notes yesterday. These are the notes. Just go through it once, whether you're okay with this. If any doubt, you can ask right now. No issues. Have a look once. हाँ, by Monday, ठीक है, I'll give you a schedule. थोड़ा सा up to what? Next 2-3 weeks का what will be the schedule? What portion we will complete, right? So you will have a clarity of what is to be done and how the class will go. ठीक है क्या? एक बार देख लो this definition of FM. Anyone having any problem in this? Just have a look. कोई problem? If okay तो आगे चलो. 3 decisions. Were you okay with all the 3 decisions? Tell me. कोई Yes, sir. problem? Yes, sir. चलो. Objectives we were done with, I think, shareholder wealth maximization, right? What was shareholder wealth maximization, right? And then secondary objectives की भी बात की थी. Primary objective is what? Shareholder. Secondary objectives can be a lot of objectives, right? Can be a lot of objectives. What are the objectives? Profit maximization. Did we talk about profit maximization? Yes. Did we talk about market share increase? Yes. Did we talk about geographical growth? Yes. We talked about customer satisfaction. Are you okay with customer satisfaction या उसमें कोई you have some issue there? बोलो. Customer satisfaction कोई issue है क्या? As an objective. No, Tell me, sir. if your customer is not satisfied with your services, will he be your repeat customer? No. No, sir. No, Not at sir. all. So, but how much ever you try, is it a financial objective or a non-financial objective? Think about it. Customer satisfaction. Can you measure customer satisfaction on the No. balance sheet? No. No. Do you have a column called as customer satisfaction? No. That is only a non-financial objective which needs to be fulfilled. Correct? आज अभी ईपीएस ग्रोथ का थोड़ी देर में, इसके बाद देयर इज अ प्रॉफिट फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट. इसमें ईपीएस का फॉर्मूला एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट? तो 1 मिनट के लिए अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आई वांट टू गो अ बिट, राइट? चले क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स टॉक अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ कंपनी दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. ओके, यहाँ पे वेन एवर वी टॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट, आई विल ट्राई टू हाईलाइट ये किसके लिए है? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, राइट? When I say objective of financial management of a profit making company, right? In this case, when I say social responsibility, can we talk about social responsibility? आ जाओ. Let's talk about social responsibility. ये रहा social responsibility. Do you know there is something called as a cancer village in Punjab? Idea है? Have you heard about it? मालूम है? Or no? Generally, I give this example. Cancer village in Punjab. मालूम है कि नहीं? Have you heard about it? Punjab side, No, sir. there's a full village जिसमें everybody almost got what? Cancer. क्या हुआ था? There was a company, okay. So there was basically a company which was working in Punjab, more of agriculture based company, right? Which was doing agriculture packing or was up in one of the small villages in Punjab, right? And it so happened, right, that they were emitting some harmful gases in the environment. अब क्या हुआ? The air that was there, okay, they used to release all carbon dioxide and other harmful chemicals which lead arsenic और वो सब ऐसी सारी चीजें, they were what? Polluting the environment or the air with it. So government told them not to what? Dump their waste basically in the air. So the company had to function, because see, if you cannot dump your waste in the air, all the smoke that is there, right, will you be able to do production going ahead? If you do production, obviously there is going to be what? Some kind of waste that will come out. So what the company did is, strategically they build a very deep hole 100 feet below their factory and started dumping all that air or all that smoke in the land. तो क्या होने लग गया? द नेबरिंग
द नेबरिंग फील्ड्स, वाटर जो सब था ना, उसके अंदर ऑल दीज केमिकल्स वर मिक्स्ड, एंड दोज हूएवर व्हाटएवर क्रॉप्स वर ग्रोन हियर ऑन दोज फील्ड्स एंड हूएवर ड्रैंक दैट वाटर, राइट, उनको दे ऑल स्टार्टेड हैविंग कैंसर बिकॉज दे वर इंजेस्टिंग व्हाट, केमिकल्स. तो इस वजह से द कंपनी वॉज, आज आप देख सकते हो देर इज कैंसर विलेज ऑफ इंडिया, ऐसा अगर आप गूगल करोगे यू विल फाइंड द विलेज, राइट. तो ऐसा सब होता है. शुड अ कंपनी बी अलाउड टू डू ऑल दीज थिंग्स? थोड़ा सोचो. डज इट नॉट हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एज अ होल? मेक सेंस, डज नॉट मेक सेंस? सोचो जरा, बराबर है क्या या नहीं? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, शुड इट हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोचो सोचो. और नो, होना चाहिए ना? बोलो. यस. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही हाउ मच एवर प्रॉफिट, राइट, यू आर अर्निंग, बट डोंट प्ले अराउंड विद द सोसाइटी एज अ होल, डोंट प्ले अराउंड विद द फ्यूचर ऑफ पीपल, डोंट प्ले अराउंड विद द हेल्थ ऑफ पीपल, राइट. ईपीएस को एक मिनट के लिए पॉज करता हूं, राइट. विल कम बैक टू ईपीएस ग्रोथ, राइट. अब थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉफिट फॉर्मेट. कहीं तो गिव अ हेडिंग. तो यू डू वन थिंग, ठीक है. यू रिटर्न दिस थ्री डिसीजन ऑफ एन, आई थिंक दिस एंड दिस वाज होमवर्क फॉर यू, बराबर है ना? दीज टू थिंग्स वर होमवर्क. आई थिंक आई रोट इन द व्हाट ग्रुप एज वेल. ये दो होमवर्क थे ना. तो लीव वन पेज फॉर दिस थ्री डिसीजन ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर. एक पेज में हो जाएगा. एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगा ना एक पेज में. लीव वन पेज फॉर दिस. कैन यू लीव वन पेज एंड कैन यू कॉपी दिस डाउन? प्रॉफिट फॉर्मेट. ये प्रॉफिट फॉर्मेट इज अ फॉर्मेट विच विल बी यूज टिल द एंड. मतलब आई थिंक आई विल बी यूजिंग दिस 100 to 100 टाइम्स इन द होल व्हाट सिलेबस. अभी थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट. डू यू नो ऑल दीज टर्म्स? एनीवन हु डज नॉट नो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? ऐसा है कोई? एनीवन? इफ यू डोंट नो इट, डोंट नो इट, ठीक है, नहीं मालूम. आई विल टेल यू फ्रॉम डिटेल, डरने का जरूरत नहीं है. टेल मी, है कोई हु डज नॉट नो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? सेल्स आई थिंक एवरीबडी नोस. इसमें किसी को प्रॉब्लम है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन. इसमें किसी को डाउट है? कॉन्ट्रीब्यूशन टर्म. इज समवन देयर हु डज नॉट नो व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन? नहीं होगा तो बढ़िया है. एनीवन? नहीं आता तो नहीं आता. टेल मी व्हाट, ओपनली, जो है वो. यस श्रेया. Contribution terms I'm not familiar. हाँ, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टर्म इज व्हाट? नाउ सी, ये मेरे पास एक कप पड़ा है. कप मैंने लिया था. ये कप कुछ 150, कुछ 100, 150 या 200 के आसपास होगा, राइट. दिस इज द सेल्स दैट इज देयर. सो एक कप अगर बनना है, वी वांट टू मेक अ कप, करेक्ट. तो देर आर टू कॉस्ट. आई एम अ कप फैक्ट्री ओनर. कप मेकिंग फैक्ट्री है मेरी, एंड आई एम एन ओनर ऑफ दैट, करेक्ट. नाउ आई हैव अ फैक्ट्री सेटअप, राइट. फैक्ट्री में ऑल दिस कप्स आर मेड फॉर मेकिंग द कप. आई थिंक ये कुछ चाइना, क्या बोलते हैं इसको, चीनी मिट्टी बोलते हैं इन हिंदी. आई डोंट नो व्हाट दे कॉट, क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आई फॉरगॉट. जो भी, जैसे भी, क्या भी बनाते हैं, राइट. तो दे द रॉ मटेरियल इज देयर. देर इज अ मशीन दैट डज द वर्कआउट, राइट, जो भी ये बनाना है उसका. एंड देर इज अ टीम विच पैक्स द कप. तो आपने क्या करना है? यू हैव टू पुट रॉ मटेरियल इन दिस, राइट. रॉ मटेरियल, इफ लेट्स से आई एम गेटिंग इट एट $150, somewhere around raw material is $30. This raw material to make one cup, right? The raw material. Then machine cost, right? Or let's say labor cost. Let's say एक और step आगे जाता हूँ. This is not even made in machine. The whole labor only works around this. तो labor को $10 लगते to make this one cup, correct? Right? And to pack it. Let's say machine एक मिनट के लिए निकाल दे रहा हूँ. पैक करने के लिए $2 लगते हैं. तो लॉजिकली टू मेक दिस कप एंड पैक इट एंड गेट इट रेडी फॉर द मार्केट, जो भी कॉस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट. मीन्स इफ आई डोंट मेक द कप, आई कैन सेव $30 का रॉ मटेरियल, $10 का लेबर, $2 का पैकिंग. ऑल दैट विल बी सेव्ड, करेक्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट इज इफ आई मेक दिस वन यूनिट ना, तो हाउ मच कॉस्ट इट विल बी टू मेक दैट वन यूनिट, बेसिकली दैट विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट.
Now see, tell me, only by making the cup and selling it, right? Will you get profit? Or let's say 150 में से how much is deducted? 42 deduct करके how much is left then? Tell me. Per unit sale 150 का है, correct? How much is left now? That is profit. Logically तो profit है क्या? ये कब बन गया and I sell it off. इतने में ही काम खत्म हो जाता है क्या? Tell me or no? Other expenses are also there. These are called as basically variable or direct expenses. क्या बोलते हैं? Direct variable या direct expenses. Directly what? Related to the manufacturing. Right? तो अब ये जो 102 that will be या 108 that will be remaining. What is this? Correct? अब ये 108 में से now let's say I tell you that I make 1000 cups. So every cup will give you $108 का what? Contribution. Sir contribution मतलब क्या? सुनो सुनो सुनो. That means if I am selling 1000 cups and I am getting $108 per cup after deducting the making charge of the cup, that means tell me how much is the money that I will get in my pocket. सोच के बोलो. 108 that is what? बोलो. 1,08,000 or 108,000? बोलो. 108,000. $108,000. Now $108,000, sir. Profit 108,000. Just as you were very happy. Sir, profit 108,000. The factory owner came to ask for rent. अरे boss, right? He said that पूरे साल में you sold 1,000 cups, right? The rent for the full year is 20,000. You have to pay a 20,000 cost. Sir, but this is not for making the cup. But without the factory, can you make the cup? Tell me. No. But sir, rent to should be per what? Cup basis. No. The owner says that boss, rent was decided beforehand. It is a fixed cost, right? Then you are as just were happy that chalo sir, no problem. 20,000 given rent. Remaining what? 88,000. Enjoy the profit. Then came electricity, right? Electricity bill. They said that on an average you have to pay what? Full year का $5,000. अरे सर कब के लिए इलेक्ट्रिसिटी अरे लगेगा ना, विदाउट दैट द वर्कर्स कैन नॉट वर्क, राइट? Sorry. So 83,000 is something that is remaining. Then your labor or other labor, there is also not only normal labor, there is loading unloading ka labor, all other costs that are fixed salaries of staff, accountant, everything is somewhere around 23,000. After deducting everything, you get 63,000 in your hand. These three expenses are variable costs. Whatever after deducting variable cost, whatever is left in your hand is nothing but your business's contribution towards the three fixed costs that are there. So why is it called contribution, boss? Bolo. Because this business, right, just by making this cup and selling this cup, you can earn 108,000, right? But you will require, or this business is contributing 108,000 so that you can take care of all the what? Fixed cost. These are all the fixed costs. Now are you okay? Why the name contribution? Yes, sir. The business basically contributes what? Tell me. 108. The core business of making the cup, right? Sales minus how much cost do you need to make the cup. Now see, there is a catch here. Okay. When I am doing a business, wherever the business where the fixed costs are very low, that business will have a lot of profit because their main product will contribute a lot, right? If you do the business right and if the selling price is correctly done, right, or calculated correctly, then you'll have a lot of contribution, and very low fixed cost would lead to what? Tell me. Having very high profits, correct? देखो जरा. Okay, anyone who's okay or not okay with this? Okay क्या बाबा? I don't know whether you know contribution or not, but are you okay with the concept of contribution? Maybe you must have heard about it or not heard about it. कितने लोगों ने सुना था? How many people knew? So very clear now because I didn't know कि contribution क्यों बोलते हैं. Contribution क्यों बोलते हैं? Contribution is what? See, contribution generally per unit is very famous. Then you divide it by what? Tell me. Or sorry, multiplied by what? The number of units that you have sold, basically. That is how things work out. इसका मतलब that is the meaning of contribution. I teach PM also, no? So expected,
ओके, आई शुड नो ऑल दिस, राइट है क्या? देखो, पीएम भी आता होगा क्या? आता है, राइट? दैट इज हाउ थिंग्स वर्क आउट इन, these are basic costing concepts, right? फिर चलो, let's take fixed cost. Now are you okay with the concept of fixed cost? Let's say ये सारे $1,000,000 है, these are in totality, ठीक है? A business is having what? Then fixed cost minus किए. Why this depreciation is deducted here? Can you tell me? Why is depreciation deducted? Sir, profit में depreciation का क्या काम? Tell me. Concept of depreciation. What is concept of depreciation? बोलो. Any idea? The systematic allocation of cost. So हाँ, for year एलोकेशन, यस, एक तो हाँ एलोकेशन है, करेक्ट. yes sir. दूसरा इसका, हैव यू हर्ड अबाउट अ कंसेप्ट कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल वेयर एंड टेयर. हो सकता है, लेट्स से यू हैव अ मशीन, करेक्ट, अ मशीन दैट हैज अ 5 year लाइफ and you bought it for, let's say, $50 million. Now after 1 year, if you go to sell the machine where 4 years are still left in its life, will you be able to get the initial investment that you did of 50 million 1 year ago as your selling price of the machine? Or generally you have used the machine, so the price will be comparatively lower. थोड़ा सोच के बताओ. Lower. Lower, Lower. right? So $50 million is what you invested in a machine 1 year after. If you are looking to sell the machine after 1 year, probably if it is a 5 year life left and एकदम ही practically एकदम ही dumbly सोचे तो $50 million 5 years. So every year how much should be the wear and tear of the machine? Should be logically $10 million. Everybody knows some or the other where the formula of what? Depreciation by SLM basis. SLM में wear and tear ही होता है. The major thing is wear and tear. हाँ सर, मतलब in 5 years the machine will become zero value. Logically should become zero value. After that if you are selling it, you will get very less amount. उसका life अगर 5 years है, after that if you sell it, logically you will get a very small amount or trivial amount, right? That is what the logic is, but may not be true in all cases. But yes, generally we can say that the normal wear and tear of depreciation. After deducting depreciation, you get what? Operating. See, this is the operating of the business. You are doing your business, उसमें machinery है, labor है, costs है, all those things that are required to sell this what? Mug, cup, whatever you want to say. Correct. From the core business, you are getting how much profit? It is also called as operating profit before interest and tax. It is also called as, or it is called as operating profit, profit before interest and tax, PBIT और EBIT. ठीक है, इधर तक कॉपी कर लेगा, राइट इट डाउन विथ मी. चलो क्विकली, ये लिखना पड़ता, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट इट डाउन इन क्लास ओनली, होमवर्क नहीं. राइट इट डाउन, चलो राइट इट डाउन. लिख लो जल्दी. प्रॉफिट फॉर्मेट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से यू डिडक्ट फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, you get operating profit or PBIT, EBIT, whatever you want to call it. This is from actual running of the business. Huh? Actual running of the business say you get this amount. चलो done. चलो आगे, the amounts also you can copy. It will help us frame formulas below. चलो आगे, operating profit, PBIT, EBIT, whatever, different words. Operating profit, PBIT, EBIT. Then from that, now see, इधर business का सारा work डना, ये बना के to make this, sell this machine का cost, everything considered. Now what happens is, this is actual profit that you have in your what? Pocket.
Then when you are very happy as an owner, अरे बाबा $30 million profit we have earned, right? The first person that came to ask for money is your interest on loan or interest on what? Debt. इसमें कोई टेंशन? डेट वाला बोलेगा लाओ हमारा इंटरेस्ट लाओ. You have taken loan from us. You remember for yesterday's business, correct? दिगांत और हर्ष के business में also there was what? Debt that we had taken. So first person from the outside, this is our internal profit that we earn in the company. From outside layer, the person that comes up first is your debt holder. He will ask for his interest, right? Then what will happen? After deducting his interest, we get what? PBT or EBT. Profit before tax or what? Earnings before tax. लिख लो PBT, EBT. Then as you are happy, correct, that चलो $25 million आ गया हाथ में. Who will come up next? बोलो कौन है नेक्स्ट मित्रों? Who is next? बोलो निर्मला ताई कौन है? बोलो नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? टैक्स इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस टैक्स एट 30% ऑन योर व्हाट? ईबीटी अर्निंग्स बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उस पर टैक्स पे करेंगे एट वॉट एवर रेट इन द व्हाट? टेल मी. इकोनॉमी या कंट्री, हर एक कंट्री का कुछ अलग टैक्स रेट होता है. देन यू गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दिस इज समथिंग दैट इज व्हाट यू कैन अर्न एंड यू आर वेरी हैप्पी. बॉस ये अपना क्या है? प्रॉफिट है. बराबर है क्या? देख लो जरा. ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसमें कोई डाउट है किसी को? पैट या ईएटी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो भी लिखना है बोलो. इसमें किसी को डाउट? चलो फिर आगे. कैन आई गो अहेड? बोलो बोलो. कोई Yes, sir. टेंशन? लिख लिया है? चलो. उसके बाद इफ यू हैव सम प्रेफरेंस शेयर होल्डर. हु आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर? कैन एनीवन टेल मी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हैव यू हर्ड द टर्म प्रेफरेंस शेयर होल्डर एवर? क्या बोलते हो श्रेया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव यू हर्ड या नहीं? Yes, sir. हु आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर? बोलो चलो. आर दे ओनर्स ऑफ द कंपनी? आर दे ओनर्स? No. Are they owners? No, No. sir. Then they are whom? बोलो. They are not owners, right? Then they are what? They give you money, right? But they have what? Preference over dividend on whom? The normal equity shareholders or the owners, right? They are type of, for accounting purposes, they are shares. But for financing purposes, whenever we go ahead, right? I will tell you that this is one type of debt. But अभी के लिए the story sells that profit after tax के बाद dividend to preference shares. उसके बाद whatever is left after paying your debt holder and your preference shareholder and your tax, what is left boss? बोलो क्या है अगला टर्म? क्या है? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू whom? Equity shareholders. इक्विटी शेयरहोल्डर्स. अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स. ये रहा EAESH, very important term. After paying everyone from outside, may it be debt holder, preference shareholder, tax, whatever is left in your pocket, then can you enjoy that this is the earning that the owners have earned? या थोड़ा सोचो. देखो हाँ, just give it a micro thought. थोड़ा micro thought दो. मैं आपको I'll give you a way to think about this. ठीक है? That boss, I earned 30 million, right? First एक लाइन लगाओ. सबसे पहले इंटरेस्ट आके या डेट वाला आके बैठता है. ही से लाओ भाई इंटरेस्ट लाओ. उसके पीछे व्हाट? निर्मला सीतारामन लाओ टैक्स लाओ. करेक्ट. Then some preference shareholder who gave you money when you needed money, right? They are not owners, but they are what? They have preference in payment of dividend compared to the owners. तो चलो उनको भी पैसा दे दिया. And preference shareholder का dividend is always fixed percentage. बराबर है क्या? Always what? Fixed percentage, right? देख लो जरा. Then you have what? After that, whatever is left is your money. But tell me, can the equity shareholder pay the full EAESH to themselves as dividend? थोड़ा सोच के बोलो. पूरा डिविडेंड बोल के पे कर सकते हैं?
Can you take all that money home? No, sir. No. Only a part of it generally. Sir, are there companies who pay full amount as dividend? Yes. Right? But generally, you would want to follow a preference or a dividend policy where you pay part of it so that you can retain certain earnings in your business and reinvest it into the business. बराबर है क्या? तो देखो जरा EAESH equity dividend paid. Then you have retained earnings. बराबर है क्या? Then number of shares of company are how much? 1 million shares. In that case, if I tell you that boss earning attributable, you earned, see, as an equity shareholder, invested money. After paying everyone, the earning that is attributable to me is $12.5 million. How much? 12.5 million. And we are 1 million shareholders. So per share, how much is the earning? Tell me. 12.5 million earning attributable to us and 1 million shares. Bolo. How much is the earning attributable to each share? Bolo, bolo. Kitna? 12.5. $12.5 per share. That only gives us the formula of EPS. लिख लेते क्या EPS formula? क्या है EPS का formula? 12.5 million divided by the 1 million shares. कोई टेंशन? बोलो बोलो. चलो यहां तक लिख लो EPS तक, then we'll go to DPS. चलो 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 जल्दी लिखते क्या? लिखो लिखो. Once done, let me know. EPS का फॉर्मूला क्या करो? बॉक्स कर दो. ओके है? राइट इट. एकदम बेसिक है, बुक में होना चाहिए. चलो हर्ष दिगंत लिख रहा ना बेटा? देव लिख रहा ना बेटा? किमया Yes, sir. लिखो लिखो. विलक्षणा, रुजुता, Sir. राइट इट डाउन. चलो क्विकली. लिख के हो गया तो बोलो. सर हो गया. हो गया. चलो अब व्हेन आई से ईपीएस ग्रोथ, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने? ईपीएस ग्रोथ ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? याद है क्या? कहाँ पढ़ा था रे ईपीएस ग्रोथ? Objectives. ऑब्जेक्टिव्स में. नाउ सी, एक यही कंपनी का ऑप्शन विच वॉट एवर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हियर, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो. थोड़ा सा. दिस ईयर आई एम हैविंग अ EAESH ऑफ हाउ मच? $12.5 million. नेक्स्ट ईयर अगर मैं आपको बोलूं, राइट, that this 12.5 million has got to $15 million profit or EAESH, right? In that case, what will be my EPS? Can you tell me? EPS $15 per share. करेक्ट है क्या? बट प्रॉब्लम क्या हुआ ना, मेरा प्रॉफिट बढ़ा. सुनो सुनो हाउ द थिंग्स वर्कआउट. सर फिर EPS ग्रोथ हुई क्या? पहले मेरे को ये बोलो. EPS ग्रोथ हुई क्या? फ्रॉम $12.5 per share to $15 per share. Is there EPS growth? Tell me. हुई क्या नहीं हुई? Yes, sir. यस. Yes, sir. बट सर फिर तो बेसिक ऑब्जेक्टिव EPS ग्रोथ होना चाहिए था ना? बराबर है. EPS एट द एंड ऑफ द डे इज अ प्रॉफिट मेजर और अ शेयर होल्डर का वेल्थ मेजर. थोड़ा सोच के बोलो. EPS प्रॉफिट मेजर या शेयर होल्डर के वेल्थ का मेजर? सोच के बोलो. Wealth का measure. वेल्थ का. अर्निंग बढ़ी तो शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ता है. चलो एक एग्जांपल देता हूं. ठीक है. एक डायरेक्टर था, राइट. व्हाट हैपेंड इज, उन्होंने मीटिंग थी, AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, करेक्ट. दे प्रॉमिस्ड कि अभी $12.5 पर शेयर का EPS है, करेक्ट. दिस विल गो टू $20 पर शेयर नेक्स्ट ईयर. EPS कितना हो जाएगा बोलो? एंड व्हेन दे डिड दिस, तो शेयर का प्राइस था $100. आफ्टर 1 year व्हेन दे वेंट इनटू द AGM, एंड 12.5 का $17.5 पर शेयर का क्या हो गया था? EPS.
मतलब इज द टारगेट फुलफिल्ड और टारगेट नॉट फुलफिल्ड, सोच के बताओ। Not fulfilled. नॉट फुलफिल्ड, तो शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? व्हाट विल द इक्विटी शेयर होल्डर परस्यू दिस एज? बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. Negative. $80। यानी every time EPS increase और EPS growth will it surely tell you that shareholder का wealth maximize होगा? नहीं। Understanding where I'm going with this? ठीक है क्या? Yes. तो ओके है क्या? EPS ग्रोथ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है? एंड व्हाई इट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। एवरी कंपनी वांट्स कि EPS ग्रो होना चाहिए, राइट? बट दैट डज नॉट मीन इट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इट इज व्हाट? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। इसमें अभी कोई भी ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम है क्या? सोच लो जरा। ओके है? चलो मैं आगे, कैन आई गो अहेड? चलो, Yes, sir. चलो यहां तक अपना हो गया था। ओके, अब चलो, अब अगर सुनो ना, ये प्रेफरेंस डिविडेंड होता ही नहीं तो PAT ओनली वुड हैव बीन EAESH। बराबर बोल रहा हूं क्या? इफ देर वॉज नो प्रेफरेंस डिविडेंड एट ऑल, वुड योर PAT ओनली बी EAESH? थोड़ा सोच के बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो वो भी लिख लो नोट में, लिख लो इसके नीचे, EPS के फॉर्मूला के नीचे नोट लिखो। नोट लिखो। हाँ, इधर इंटरेस्ट नहीं होता, अगर आपकी कंपनी में डेट ही नहीं है तो देन PBIT वुड हैव बीन इक्वल टू EBIT और EBT, सॉरी, PBIT एंड PBT वुड बी द सेम, बट वो नोट में लिखने जैसा चीज नहीं है, राइट? तो भी अगर आपको लिखना है एडिशनल नोट लिख लो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर एक और नोट लिख देता हूं। टैक्स नहीं है ऐसा हो सकता है क्या? टैक्स नहीं है ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा होगा क्या No, कभी? sir. ऐसा कभी नहीं होता है ना? हाँ, नहीं तो लिखोगे इफ देर इज नो टैक्स, क्या होगा? PBT इज इक्वल टू PAT। ऐसा कभी नहीं होता है। सेकेंड नोट, इफ देर इज नो इंटरेस्ट ऑन डेट, जस्ट फॉर फन पर्पस लिखा रहा हूं, ठीक है? PBIT, ठीक? ओके या नोट? चलो, देन लास्ट डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का भी फॉर्मूला तो इजी है, टोटल डिविडेंड पेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो भी कॉपी डाउन कर लो सो दैट यू कैन क्लोज दिस शीट एज ऑफ नाउ। ठीक है क्या बेटा? देख लो, डन है? एनी टेंशन? चलो, कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर कर लेना। 5 मिलियन डिविडेंड पे किया आपने टू 1 मिलियन शेयर होल्डर्स, राइट? सो इट इज $5 पर शेयर। सो डिविडेंड पर शेयर और DPS इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड पेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कोई टेंशन? बोलो। ओके है या डिफिकल्ट है? ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं किया हुआ है, सो शुड नॉट बी अ वेरी बिग टास्क। बराबर है ना? किया है ना पहले, किधर ना किधर? फिर भी Yes. रिवीजन। चलो आगे, TSR पे चलते। TSR, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। टोटल शेयर होल्डर रिटर्न,
TSR. Have you heard about the term TSR? बोलो, या नहीं सुना है? सुना है या नहीं सुना है? बोलो बोलो. No, sir. नहीं. चल, नया नया एक फॉर्मूला आपको आज सीखने मिलेगा, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, तो आपके सिलेबस में आ जाओ. पहले लेट्स टॉक अबाउट TSR. एक शेयर होल्डर हो आप, थोड़ा लेट्स गो इनटू अ शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट. कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दो, यू आर अ शेयर होल्डर. लेट्स से टुडे मिस्टर ए भाई साहब है, ठीक है, हैज बॉट शेयर्स ऑफ कंपनी ए टुडे on 1/01/2025 for $200 पर शेयर. ठीक है क्या? राइट. देखो जरा, इसमें कोई डाउट है? आज मैंने एक शेयर बाय किया विच इज $200 पर शेयर. राइट. अब हुआ क्या? ड्यूरिंग द ईयर 2025 मिस्टर ए हैज रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट्स. सुन लो. राइट. मिस्टर ए को रिसीव हुआ है डिविडेंड पेड ऑन 107 या 108/2025. इसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड. आपने सुना है एनीथिंग अबाउट इंटरिम डिविडेंड? हैव यू Yes, sir. और डू यू नो द टर्म इंटरिम डिविडेंड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड बॉस? बोलो, क्या लगता है इंटरिम डिविडेंड? बोलो बोलो, क्या लगता है, क्या लगता है? बोलो बोलो. बेसिकली ये एजीएम से पहले दिया जाता है। हाँ, अगर आप कंपनीज एक्ट में जाओगे ना बॉस, तो डेफिनेशन क्या है मालूम है इंटरिम डिविडेंड का? राइट. इंटरिम डिविडेंड का डेफिनेशन बहुत सिंपल है. डिविडेंड पेड बिटवीन टू AGMs. क्या है? बोलो. सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है. दो तरह के डिविडेंड होते हैं. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड? वन इज फाइनल डिविडेंड एंड वन इज इंटरिम डिविडेंड. राइट. सर फाइनल डिविडेंड क्या होता है? राइट. एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, एक कंपनी जो होती है, व्हाट इट डज इज एवरी ईयर इट डिक्लेयर्स, द डायरेक्टर्स, राइट, डिक्लेयर हाउ मच डिविडेंड इज टू बी पेड टू ईच शेयर होल्डर. राइट. उस हिसाब से दे विल टेल यू दैट बॉस यू विल गेट व्हाट, $12 पर शेयर. बट लेट से 6-7 मंथ्स में कंपनी का ईयर, जैसे 1 अगस्त को कंपनी इज पेइंग इंटरिम डिविडेंड बिकॉज लेट से दैट देयर वाज अ मीटिंग बिटवीन द मैनेजर्स. राइट. AGM में क्या होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स कम अप. बट ये जो इंटरिम मीटिंग होती है, राइट, इन दैट जनरली ओनली डायरेक्टर्स कम अप एंड दे सी दैट 6-7 मंथ्स में बहुत प्रॉफिट हुआ है. राइट. एंड द इक्विटी शेयर होल्डर डिजर्व सम डिविडेंड एज ऑफ नाउ ओनली. तो वो दो AGM के बीच में जनरली एक ही बार डिविडेंड पे होता है. करेक्ट. बट इफ यू हैव सुपर प्रॉफिट्स एंड यू वांट टू पे डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, राइट, तो उसके लिए देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड एज व्हाट, इंटरिम डिविडेंड. इसमें किसी को लपड़ा? श्रेया व्हाट डू यू से? दिगंत क्या बोलता है? क्लियर है सर. क्लियर है? Clear, sir. सबको मालूम है? ओके. इंटरिम डिविडेंड ऑफ $12 एंड देन बी फाइनल डिविडेंड ऑफ $10 per share at the AGM. तो आप अब ओके अबाउट व्हाट, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड बोथ. राइट. द वैल्यू ऑफ द शेयर at end of the year 2025 is, समझ लो, $230.
राइट। सबसे पहले मैं आपको पूछता हूं इसमें, कैलकुलेट द रिटर्न परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। निकाल सकते हो क्या? रिटर्न परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कितना रिटर्न परसेंटेज है बता सकते हो? थोड़ा सोचो, 1 मिनट। आपको कितना मिला टोटल डिविडेंड, देखो जरा, टोटल डिविडेंड कितना मिला? ये 12 $92. और ये $10, बराबर। एंड हाउ मच डिड यू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बोलो। $200. तो आपका रिटर्न कितना हुआ फिर, अगर मैं बोलूं रिटर्न 11%. परसेंटेज? सबसे पहले मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल डिविडेंड पेड कितना है बॉस, करेक्ट? कितना है टोटल डिविडेंड पेड, टेल मी। टोटल डिविडेंड पेड, आप देखो एक काम करो, राइट डाउन एग्जाम्पल TSR1, TSR1 फ्रॉम SI नोट्स, ऐसा हेडिंग दे दो, रिफर एग्जाम्पल 1, राइट, और लिखो कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट। तो ये आप जब रीड करोगे तो नोट्स लेके बैठना, ये क्वेश्चन रीड करना, एंड अब टोटल डिविडेंड पेड निकालते क्या साथ में? चलो आ जाओ। टोटल डिविडेंड पेड कितना है बॉस बताओ? $10, 22। कितना, 12, $12 प्लस $10, करेक्ट, यानी $22। एंड हाउ मच हैव यू इन्वेस्टेड, बोलो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना है? $200। देयरफॉर रिटर्न ऑफ डिविडेंड इन परसेंटेज, बोलो 11%। कितना? 11%। 22 डिवाइडेड बाई 200 कितना है? 11%, बराबर है। चल बढ़िया, ओके। एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट, बोलो। पहले ये लिख लो, दिस आई विल गिव हेडिंग, इधर लिख देता हूं एग्जाम्पल TSR1, ठीक है ना? तो आपको वापस ये लिखने का जरूरत नहीं है, और टाइप्ड है तो आपको समझ में भी आ जाएगा, करेक्ट? ये ओके है आपके लिए? कैन आई गो एट देन? 11%, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रिटर्न ड्यू टू होल्डिंग द शेयर्स फॉर द ईयर। ये तो अलग रिटर्न है क्या बॉस, टेल मी। ये किस रिटर्न की बात कर रहा हूं, कोई बता सकता है? किस रिटर्न की बात कर रहा हूं, बोल सकता है कोई? Due to देखो आपने, increase in share price, हाँ, $200 क्या था यू इन्वेस्टेड, एंड हाउ मच वाज द शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, कैन यू टेल मी? $230. 230। तो आई विल से अमाउंट इन्वेस्टेड, करेक्ट, इज इक्वल टू $200 per share, and that is, can I say share price today? ये शेयर प्राइस एट स्टार्ट ऑफ ईयर लिख सकता हूं, बोलो। एंड शेयर प्राइस एट एंड ऑफ ईयर कितना होता है बताओ मेरे को? व्हाट वाज द शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर? $230। 220। देयर फॉर रिटर्न परसेंटेज ही निकालना है अपने को, रिटर्न परसेंटेज ड्यू टू होल्डिंग शेयर्स, इसको एक और नाम है, और चार्जेबल गेन्स, और गेन्स, कैन आई से गेन्स ड्यू टू होल्डिंग द शेयर्स, बोल सकता हूं क्या, बोलो। गेन ड्यू टू होल्डिंग द शेयर, हाँ, तो कितना है भाई? $30 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? $200 इन्वेस्टेड, हाउ मच इज द रिटर्न? 15%। 15%. उसके बाद कैलकुलेट द टोटल शेयर होल्डर रिटर्न, ब्रैकेट में, दैट इज टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। भाई साहब क्या है टोटल शेयर होल्डर रिटर्न? खाली डिविडेंड का रिटर्न या गेन भी है, बोलो। डिविडेंड प्लस गेन,
फ्रॉम शेयर्स, यानी कितना हुआ बॉस, बोलो। डिविडेंड से कितना रिटर्न आया बॉस, बोलो। 11% प्लस 15%, कितना है बॉस, 26%। समझ में आ रहा है? अ न्यू वे टू लुक एट टीएसआर, क्या बोलते हो सर? ऐसा कैसा, दो अलग अलग रिटर्न और सब दो अलग अलग नहीं, इसको फॉर्मूला से भी कर सकते क्या? यस, देखो कुछ फॉर्मूला ऐसा है टीएसआर का। नाउ लेट मी गो, ये आपने लिख लिया क्या 26%, बोलो। ओके है? Yes, sir. आप इसको ए बी सी लिखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी सी आप रिफर कर सकते हो यहां से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ चल, अब मेरा बोलना क्या है सुनो, ठीक है। टोटल शेयर होल्डर रिटर्न का फॉर्मूला है, सर कुछ भी पढ़ाते हो, ऐसा थोड़ी होता है टोटल शेयर रिटर्न, सुनो ना। टोटल शेयर होल्डर रिटर्न का फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड, एक ब्रैकेट में, प्लस गेन ऑन शेयर्स, राइट, द होल डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर या स्टार्ट ऑफ ईयर, जो भी बोलना है आपको। चलो ये थोड़ा बात करते हैं, टोटल डिविडेंड यानी क्या है, दोनों डिविडेंड पे किया आपने, कौन से दोनों डिविडेंड, इसी फॉर्मूला को और क्या करता हूं, ओपन अप करता हूं, इंटरिम डिविडेंड प्लस, क्या है बॉस, टेल मी, कौन से दो डिविडेंड है, इंटरिम प्लस व्हाट, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम प्लस फाइनल डिविडेंड, करेक्ट है बॉस, प्लस गेन ऑफ शेयर, सुनो गेन ऑफ शेयर आपने कैसे निकाला, ये शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 230, उसमें से क्या माइनस किया आपने, ये $30 कैसे निकाला, 230 माइनस 200, यानी शेयर प्राइस एट द एंड माइनस क्या किया बॉस आपने, टेल मी, शेयर प्राइस एट एंड माइनस क्या किया, शेयर प्राइस एट बिगिनिंग, द होल डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये बराबर है क्या, देखो। अब अगर इफ आई पुट अप ऑल दीज वैल्यूज, बताओ मेरे को इंटरिम डिविडेंड कितना है, ऊपर जाओ, इंटरिम डिविडेंड $12, देखो 12 प्लस 10 the whole plus share price at end 230 minus 200 the whole divided by 200, विदाउट कैलसी में बोल सकता हूँ 26% ही आएगा, तो भी वेरीफाई कर लो, आ रहा है क्या 26%, बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. टीएसआर का क्या है, यू आर व्हाट, डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ टीएसआर, देखो ऑल फॉर्मूलाज विल बी डिराइव्ड इन क्लास, करेक्ट है क्या, डेरिवेशन सही है क्या, ये देखो ये ब्रेकअप था उसका, और ये डेरिवेशन, ठीक है क्या, देख लो, कोई टेंशन। तो सर टीएसआर का फॉर्मूला है क्या, ये रहा टीएसआर का फॉर्मूला, दिस इज द टीएसआर फॉर्मूला, बॉक्स इट अप। अरे फॉर्मूला ऐसे याद रखने के रहते, बाय डिराइविंग इट रादर देन व्हाट, रिमेम्बरिंग इट, बराबर है क्या, देख लो, कोई टेंशन। ये इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का मेरे पास नोट भी है, वो भी यहाँ ऐड कर देता हूँ नीचे, ये भी आपको भी ऐड करना है, अगर ये नोट ऐड कर दो प्लीज, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, व्हाट इज फाइनल डिविडेंड, ठीक है क्या। टीएसआर एग्जाम्पल 1 बोल के हेडिंग दे दो, ओके है, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न का क्या, बोलो एवरीबॉडी, टीएसआर। अब कैन आई टेक वन और टू क्वेश्चंस ऑफ टीएसआर, बोलो, लू क्या, बोलो बोलो।
एक क्वेश्चन है, सिलेबस में है आपके, एक जगह एमसीक्यू बोल के पूछा गया है। आ जाओ, टीएसआर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप अपने नोट में लिखो, हेडिंग दे देता हूँ क्वेश्चन को, वो आप अपने नोट में लिख सकते हो। टीएसआर प्रैक्टिस क्वेश्चन, या इधर अपन ने क्या लिखा था रे? टीएसआर एग्जाम्पल, हाँ टीएसआर एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4। ठीक है, एग्जाम्पल 2 लिखता हूं ये, चलेगा ना रे? बोलो। तो आपको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। चलो, मिस्टर ए परचेस्ड शेयर्स ऑफ कंपनी जेड फॉर $500 पर शेयर्स। कितने? 200 शेयर्स ऑफ कंपनी जेड फॉर $500 पर शेयर, राइट? या एक मिनट, फॉर $100,000 इन टोटल, करेक्ट? डिविडेंड received from the company is $10,000 for all the shares, right? फिर TSR इज इक्वल टू, नहीं तो चलो एक और नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ। वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट एंड ऑफ द पीरियड इज $480 पर शेयर। कैलकुलेट द टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। कर लोगे? बोलो, मेरे हेल्प की जरूरत है क्या? बोलो। नहीं, एक मिनट, ये खाली 40,000 कर देता हूँ, ठीक है? अब मेरे को बताओ, कैन वी डू दिस? आप ट्राई कर सकते हो या मैं करूँ आपके साथ? आप दे दो एग्जाम्पल 2 टीएसआर फ्रॉम नोट्स। बोलो बोलो भाई, आपको क्या है? दिस इज द क्वेश्चन। बोलो बोलो, क्या करूँ? ट्राई करते? बोलो बोलो, करो करो, ट्राई करो, चलो। गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आंसर दो बॉस। दिगंत क्या बोलता है बेटा? कुछ यस सर। लफड़ा है क्या? लफड़ा है इधर? नहीं, ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, करो। कंसेप्ट तो आ गया समझ में। आयुषी, क्या लगता है, क्या है आंसर? चलो चैट बॉक्स में डालो एवरीवन। कर रहे सर। करो करो, चलो।
दिकान 36%, ठीक है, वन आंसर वी गॉट इज 36%। ओके, ये एक मिनट, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग, कि इसमें डिविडेंड कितना रिसीव हुआ? 40,000, बराबर है। अभी माय क्वेश्चन वाज इन दिस क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में आपने सारे कैलकुलेशन पर शेयर बेसिस पे किए या टोटलिटी पे किए? टेल मी। So per share basis पे। पर शेयर बेसिस पे। तो यहां पे मे भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए बिकॉज आई हैव गिवन इनकंसिस्टेंट डेटा। हो सकता है ऐसा, नहीं, कन्वर्ट कर दिया per कन्वर्ट कर share दिया। basis। यानी एक हाँ, मिनट, सी इफ आई अंडरस्टैंड फॉर टीएसआर आई रिक्वायर व्हाट थिंग्स, 30%। हाँ, गेन तो नहीं है, चलो ठीक है मानसी, यू आर ऑन द करेक्ट ट्रैक। ठीक है, अब देखो मेरे को व्हाट ऑल थिंग्स आई रिक्वायर इफ आई गो टू द फॉर्मूला। करेक्ट, फॉर्मूला को लिख ले क्या वापस? देखो फॉर्मूला लेके आओ क्या यहाँ से, एक मिनट के लिए। अरे बाबा, कैन वी गेट दिस फॉर्मूला? आ जाओ जरा, ये फॉर्मूला लेके चले क्या? आ जाओ। फर्स्ट आई शुड लॉजिकली राइट द फॉर्मूला, करेक्ट है क्या? हाँ, तो व्हाट ऑल आई रिक्वायर, डू आई हैव द टोटल डिविडेंड विथ मी? बोलो। यस, टोटल डिविडेंड कितना है बॉस, बताओ मेरे को। टोटल डिविडेंड, अरे बट ये टोटल डिविडेंड पर शेयर है। सी, इधर यू टेक ऑल वैल्यूज इन पर शेयर और इधर यू टेक ऑल वैल्यूज इन टोटलिटी। पहले मेरे को बोलो क्या करना है, टेल मी। तो per क्या share करना basis पे कर। Per पर share शेयर basis. पे? चलो ठीक है, हाँ, तो टोटल डिविडेंड अगर 40,000 है, राइट, फॉर ऑल द शेयर्स, तो हाउ मेनी शेयर्स डू आई हैव? टेल मी। 200 शेयर्स। तो हाउ मच इज द डिविडेंड दैट आई एम रिसीविंग पर शेयर? 200। $200 पर शेयर डिविडेंड। किसी को प्रॉब्लम इसमें? बोलो। चलो आगे फिर, टोटल डिविडेंड हो गया। गेन ऑफ शेयर्स, अब गेन या लॉस लिखना पड़ेगा, लॉस भी हो सकता है। अब गेन या लॉस ऑफ शेयर्स, अब पर शेयर में सबसे पहले उसके लिए क्या लगेगा? शेयर प्राइस एट बिगिनिंग। बोलो, शेयर प्राइस एट बिगिनिंग कितना है? आपने कितने शेयर्स खरीदे, कितने में? 1 lakh upon 200। 200, सो 100,000 बराबर है ना रे बेटा, बाय 200, यानी कितना हो गया बाबा? बोलो। $500 पर शेयर आपने खरीदे। एंड शेयर प्राइस एट एंड कितना है बाबा? 480। हाँ, एट एंड ऑफ ईयर इज $480, बराबर है क्या? गिवन है क्वेश्चन में। तो अभी सारा डेटा आ गया, तो नाउ कैन वी कैलकुलेट टीएसआर? आ जाओ। टीएसआर इज इक्वल टू बॉस $200 इज डिविडेंड पर शेयर प्लस ब्रैकेट में क्या करूं रे बाबा, मेरे को ये बताओ, 500 में से 480 माइनस करूं या 480 में से 500 माइनस करूं? फॉर्मूला में जाओ। 480। हाँ, 480 minus 480 500. minus 500. माइनस हाँ, 500 द होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय क्या करूं, 480 या 500? 500। 500. 500 कितना है बाबा, टेल मी। 36। बस। 36%, एवरीबडी गेटिंग 36%? बोलो, Yes sir। क्या Yes. बोलते हो? बढ़िया क्वेश्चन, Yes, टेल sir. मी। इधर सुनो ना, एक और लाइन ऐड करता है इधर, एक मिनट, इधर एक ही चीज ऐड करता हूं, थोड़ा देखो, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू अगर लिखता, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज $100 पर शेयर, इससे आपके आंसर पे कुछ फर्क पड़ता क्या? बोलो। सर वो शेयर कैलकुलेशन पे फर्क पड़ जाएगा ना। पड़ जाएगा, हाँ, पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। देख तू पढ़ना तो चाहिए sir। टीएसआर जब कैलकुलेट करेगा तो मार्केट वैल्यू पे परचेस करके मार्केट वैल्यू देखेगा या नॉमिनल वैल्यू से कुछ लेना देना है? Market value. हाँ, तो ये 200 शेयर्स खरीदे कितने में है? 100,000 में। तो मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है या ये नॉमिनल वैल्यू इंपॉर्टेंट है? बोलो। मार्केट वैल्यू। हाँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कलर कर लेता हूँ, ठीक है, और नीचे नोट लिख लूँ इसकी। बोलो, चल आ जाओ, नोट लिख लो इसका, नोट। TSR is always calculated on what basis? Market value basis, and nominal value
इज टू बी इग्नोर्ड। हाँ बट ये बोला होता दैट यू हैव बॉट द शेयर्स एट नॉमिनल वैल्यू, तो फिर बोलो, नॉमिनल वैल्यू पे ही शेयर बाय किए हैं ऐसा बोला होता तो फिर क्या करते? तो फिर है क्या रिलेवेंट? बराबर है, Yes, sir. बराबर है ना? चलो, बढ़िया है, ओके है। अच्छा एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं अभी। आप लिख दो बुक में अपने एग्जाम्पल 3 TSR, ठीक है ना? चलो आ जाते बेटा, चलो चलो चलो। मिस्टर जेड हैज परचेस्ड शेयर्स एट, नहीं ऐसा भी नहीं, रुको। मिस्टर जेड हैज shares which have a value of $480 right now. During the last year, he has received dividend of $53 per share। 53 ज्यादा हो जाएगा, $35 पर शेयर। आप करीब पढ़ो, ठीक है। TSR of last year currently is 27.5%। Calculate the share price 1 year ago। ऐसा एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। एग्जाम्पल 3 TSR बोल के लिख लो। कैसा टैकल करोगे बॉस ये? व्हाट डू यू से? हाँ क्या पूछा है भाई? कैलकुलेट, क्या पूछा क्या इधर? Share price of beginning. शेयर प्राइस ऑफ बिगनिंग पूछा है क्या बॉस? ठीक है, तो निकाल Yes, सकते हो sir. क्या? TSR का फॉर्मूला लिया है क्या? बोलो, ये रहा TSR का फॉर्मूला। क्या नहीं है भाई? TSR के फॉर्मूले में क्या दिया हुआ नहीं है, बता सकते हो क्या? बोलो, एक मिनट, डिविडेंड दिया है क्या आपको? टोटल डिविडेंड कितना पे हुआ है? बोलो, डिविडेंड दिया हुआ है, कितना डिविडेंड है? हाँ पहले तो ये 35। देखो सारे वैल्यूज पर शेयर है क्या? हाँ, ठीक है, ओके, ये तो ओके है। आपको TSR भी दिया हुआ है क्या बॉस? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. और आपको आज की वैल्यू दी है, आज की यानी स्टार्ट ऑफ द ईयर की ना बॉस? आज की वैल्यू जो है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर होगा। आज की वैल्यू स्टार्ट ऑफ द End ईयर की होगा वैल्यू सर रहती ये। है। नहीं नहीं नहीं, आपको कब की वैल्यू पूछी है? आज की पूछी है, 1 साल पहले की पूछी है? 1 साल पहले एक की। साल पहले की विच इज 1 साल बिगनिंग। पहले की, हाँ मतलब व्हाट दे वास्ट ईयर। देखो आज मैं जब खड़ा हूं ना साल के एंड पे, तो वैल्यू कितनी है? $480। 1 साल पहले देखो, मैं आज खड़ा हूं ना तो मैं आज देखता हूं, अरे मैंने खरीदा था एक्स अमाउंट पे, आज उसका $480 हो गया। पूरे साल में आई रिसीव्ड व्हाट? डिविडेंड ऑफ $35। बराबर है ना? और मेरा रिटर्न 27.5 है, तो शेयर प्राइस 1 ईयर अगो कितनी थी वो निकालनी है। तो इसके अगर मैं नीचे लिखूं लॉजिकली, तो एक मिनट, मेरे पास TSR अवेलेबल है। TSR इज हाउ मच? 27.5%। बराबर है, इसी को मैं 0.275 लिख सकता हूं क्या? टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितना है बॉस? कितना है? बोलो, 35। शेयर प्राइस एट एंड ऑफ द ईयर दिया है आपको? एट बिगनिंग दिए क्या? बोलो कितना? अभी कुछ नहीं मालूम तो एक्स बोलने का उसको। शेयर प्राइस एट द बिगनिंग, शेयर प्राइस एट एंड कितना है बॉस? बोलो
इस समझ में आ रहा है क्या? हर्ष, व्हाट डू यू से? जूही, विलक्षणा, रुजुता, प्रियांशी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग? बोलो बोलो भाई। श्रेया, क्या लगता है? Yes, sir. मेक सेंस? आयुषी, आयुषी को तो आता है। दिगंत, क्या लगता है? सही है ना? जूही, क्या लगता Yes, है बेटा? yes. ओके है? Little bit tough for me. क्यों, क्या हो गया? आपने तो दिया है ना एफएम। हाँ, but तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो देखो, मैं इधर खड़ा हूं अभी, करेक्ट? इधर $480 का वैल्यू है। लास्ट ईयर में डिविडेंड कितना मिला है बताओ बेटा? $35। इसमें कोई डाउट है आपको? no. बोलो। नहीं। मैं तो क्या पूछ रहा हूं कि मैंने शेयर्स पिछले साल खरीदे थे, इस साल उसकी वैल्यू 480 हो गई अभी, राइट? पिछले साल कितने में खरीदे मालूम नहीं मेरे को, राइट? बट पूरे साल का टीएसआर कितना है बोलो? $27.5। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes. 27.5%, सॉरी। तो टीएसआर के फॉर्मूला में खाली क्या है? एक चीज मेरे को नहीं आ रही है कि मेरा शेयर प्राइस एट द बिगनिंग कितना है। बराबर है क्या? देख लो। अब ओके है Yes. क्या? Yes, this is helping. ओके Timeline है। is helping. Thank you. टाइमलाइन इज हेल्पिंग, देख लो। अब वापस रीड करो क्वेश्चन, देख लो एक बार। ऐसा क्वेश्चन आपने किया है क्या जूही? याद है क्या? है? बीपीपी में क्वेश्चन है ऐसा, आया एग्जाम में। ठीक है, चलो डालते टीएसआर के फॉर्मूले में, आंसर निकालते। टीएसआर इज इक्वल टू व्हाट? बोलो। देखो, मैं ऐसा करूं क्या? ये देखो, 0.275 इज इक्वल टू, बोलो भाई लोग, 35 प्लस क्या करूं? ब्रैकेट में क्या करूं? चलो जूही बोलो, ब्रैकेट में क्या माइनस क्या? क्या होगा माइनस? बोलो बोलो। 480 minus x. 480 माइनस एक्स, परफेक्ट। द होल डिवाइडेड बाय क्या? एक्स या 480? X. एक्स। ठीक है ना? बच्चा लोग निकालो आंसर फिर। हाँ सर, अभी ये मैथ्स आप लेके जा रहे हैं, ये एक्स वहां जाएगा। 0.275x इज इक्वल टू 35 प्लस 480 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल दो राइट साइड की, करेक्ट? तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? 35 प्लस 480 सर माइनस एक्स। 404। हाँ, 0.275x, फिर ये x वहां जाएगा क्या? ये x जब वहां जाएगा, इधर माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा बेटा? Plus X. प्लस एक्स हो जाएगा। तो 1.275x इज इक्वल टू 35 प्लस 480 कितना आएगा बाबा? बोलो। 515. 515। तो अब x इज इक्वल टू व्हाट? 515 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 1.275। कितना आएगा बेटा? 404. 404 404। ठीक है, समथिंग डॉट डॉट पॉइंट में कुछ आएगा। 404 राउंडेड। ठीक है बेटा, देख लो, एग्जाम्पल 3 लिख लो। ठीक है, एक इजी वाला क्वेश्चन होमवर्क दूं? बोलो। हाँ सर. चलो आ जाओ, इसी को देखो। हाँ, स्मार्टली क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करता हूं। फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, अब बाकी सब कुछ सेम है, एक ही चीज चेंज हो गई है। क्या है देखो जरा। एक मिनट, ये डिलीट कर देता हूँ ये पुराना वाला आंसर। प्लीज बेयर विथ मी फॉर अ मिनट। हाँ, ये रहा, ये रहा। ये होमवर्क कर सकते हो बॉस, देख लो एक बार, प्लीज रीड द क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है बता सकता है क्या कोई? क्या लगता है जूही?
श्रेया क्या लगता है, क्या पूछा है बेटा? शेयर प्राइस Selling price at it. एट एंड पूछा है क्या? ठीक है, या शेयर प्राइस आफ्टर 1 ईयर लिखूं? TSR ऑफ कमिंग ईयर ऐसा लिख देता हूं, ठीक है ना? इज एक्सपेक्टेड टू बी। चलो ओके है, होमवर्क है ये, कर लोगे या मेरे हेल्प की जरूरत है? हो कर जाएगा? लेंगे। चलो, बढ़िया। चलो फिर आगे। चलो चलो चलो, अब चलो ये स्टेक होल्डर थ्योरी में, छोटा हल्का फुल्का थ्योरी टॉपिक है। चलो हाँ, अभी यहाँ पे ये जो TSR की शीट है, राइट, ये आपके रेफरेंस के लिए है, और 2-3 क्वेश्चंस है मैंने जो यहाँ पे सॉल्व किए, ये देखो नीचे दिख रहे हैं, ये रहा, ये 3 क्वेश्चन भी आपको होमवर्क है। ये रहे, देखो जरा एक आधा क्वेश्चन। 1 ईयर अगो 3.10, टोटल शेयर होल्डर 19.7, ये भी सारे आप होमवर्क में कर सकते हो जाएंगे क्या? देखो हो जाने चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है आपके लिए तीनों, ये चौथा प्लस अदर होमवर्क, ये सारे किसके हैं? आपके, क्या बोलते रहे तुम उसको, क्या है रे भाई वो, स्टडी हब के क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हो, तीनों सारे टाइप के क्वेश्चन TSR के क्लास में हो जाएंगे। आ जाओ, अब चलो इस पे स्टेक होल्डर थ्योरी पे चलेगा। स्टेक होल्डर थ्योरी पे थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर, बाद में आएंगे नोट्स पे, थोड़ा सा बात करते हैं हु आर स्टेक होल्डर्स, हु आर शेयर होल्डर्स, क्या लगता है कौन शेयर होल्डर है भाई, कौन स्टेक होल्डर है भाई, बताओ जरा। शेयर होल्डर ही स्टेक होल्डर होते हैं क्या? स्टेक होल्डर ही शेयर होल्डर होते हैं, क्या लगता है? बोलो। नो सर। नहीं, दोनों अलग अलग है। तो स्टेक हाँ होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है? ये वो सर, आई थिंक 407 था या 404 था रे आंसर? 3 का 404 404. मेरा error 4 है। था ना? हाँ ठीक, ओके, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ स्टेक होल्डर, सॉरी सॉरी, स्टेक होल्डर तो व्हाट लाइक है? कस्टमर सप्लायर जो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं कंपनी से। हाँ डायरेक्टली अफेक्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब सुनो ना, आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इसमें। महिंद्रा कंपनी मालूम है आपको, ट्रक्स बनाती है महिंद्रा ऑटोमोबाइल, करेक्ट? महिंद्रा ऑटोमोबाइल नो हैज 1,000 वर्कर्स एज ऑफ नाउ, करेक्ट? एंड राइट नाउ दे आर डूइंग समवेयर अराउंड, ऐसा समझ लो एग्जांपल के लिए 10,000 ट्रक्स अ मंथ प्रोडक्शन, बराबर है? 10,000 मंथ का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, 10,000 ट्रक्स पर मंथ, राइट? अब व्हाट महिंद्रा डिड वाज दैट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, करेक्ट, 10,000 ट्रक की जगह नाउ दे आर ओनली गोइंग टू डू 5,000 ट्रक्स। हाउ मेनी? 5,000 ट्रक्स। कुछ प्रॉब्लम है बिजनेस में, सो दे डिसाइड टू डाउन साइज, करेक्ट? डाउन साइज मतलब क्या? सो यार 10,000 की जगह ओनली 5,000 ट्रक्स। नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस? आपको लगता है क्या ये सारे 1,000 वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड? जरूरत होगी क्या उतने वर्कर की? नहीं। तो दे डिसाइड कि बॉस 500 वर्कर्स को ना क्या करना पड़ेगा, फायर करना पड़ेगा। सबसे पहले ये डिसीजन लेने के बाद उन्होंने सबसे पहला डिसीजन लिया, 500 वर्कर्स को क्या करना है, फायर करना है। तो सबसे पहले इस डिसीजन का इफेक्ट किसके ऊपर हुआ? एम्प्लॉयज के ऊपर। कुछ डायरेक्टर्स को भी फायर कर दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ? एवरी मंथ, राइट, या एवरी जो भी उनका प्रोडक्शन था, दे यूज्ड टू बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम समवन। रॉ मटेरियल वाले का भी क्या था? 10,000 ट्रक्स का रॉ मटेरियल महिंद्रा को जाता था, बट अब वो कितने ट्रक्स का रॉ मटेरियल जाएगा नेक्स्ट मंथ से, बोलो? सिर्फ 5,000। उसका सेल अफेक्ट हुआ क्या? yes. फिर क्या हुआ? इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, और उनका जो लोन चल रहा था ना, ये जैसे अपन ने वी सॉ दैट EBIT, याद है ना EBIT?
ईबीआईटी एकदम कम हो गया या ऑपरेटिंग प्रॉफिट एकदम कम हो गया, राइट? इधर जैसा इधर 25 या कुछ है ना 30, एकदम ही कम हो गया, 4 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन जिनको देना है उनके लिए पैसा बचा है क्या? इज योर प्रॉफिट इनफ टू पे इवन द इंटरेस्ट? नहीं है बॉस, प्रॉफिट ही नहीं है। तो हु गॉट अफेक्टेड? बोलो कौन अफेक्ट हुआ बॉस? डेट होल्डर्स। उस वजह से क्या हुआ? लॉस आ गया। लॉस आ गया तो शेयर प्राइस कम हो गई। हु गॉट अफेक्टेड? बोलो। शेयर प्राइस में फॉल, कौन टेंशन में आ जाएगा? बोलो। इक्विटी शेयर होल्डर। कौन टेंशन में आ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर, राइट? देख लो जरा, ओके है क्या? कोई टेंशन? बोलो। अब क्या हो गया? कस्टमर जो था हु यूज्ड टू बाय ट्रक्स, पहले 10,000 ट्रक्स आते थे, अब खाली 5,000 ट्रक्स आते हैं। तो क्या कस्टमर भी अभी डिमांड है ट्रक्स का बहुत, बट महिंद्रा के ट्रक आ नहीं रहे, विल द कस्टमर भी हैप्पी? थोड़ा सोचो, कस्टमर होगा क्या बॉस हैप्पी? बोलो। नहीं। नहीं। एक ही बंदा है ये पूरे पूल में जो बहुत हैप्पी होगा। कौन होगा? बोलो। कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर भाई बहुत हैप्पी है, उस पर भी इंपैक्ट आया है। अब क्या हो गया? इन्होंने खाली 5,000 ट्रक्स बोले ना, राइट? तो बाकी 5,000 की डिमांड सारे कॉम्पिटिटर के पास चली गई है। ये हैप्पी है कि भाई इन्होंने डाउनसाइज किया, राइट? इनके 500 वर्कर्स फ्री हुए तो हम इनको हायर करते हैं, और ये सब बराबर है, राइट? तो सर सबसे पहला इंपैक्ट किसके ऊपर हुआ? एम्प्लॉइज और डायरेक्टर के ऊपर। तो सर ये भी एक स्टेक होल्डर हुए, एक डिसीजन लिया, उसका इंपैक्ट किसके किसके ऊपर गया? सर प्रॉफिट बचा ही नहीं तो डेट होल्डर टेंशन में, लॉस आया, शेयर प्राइस गिर गई, इक्विटी शेयर होल्डर टेंशन में, करेक्ट? फिर उसके बाद सर कस्टमर टेंशन में, राइट? कॉम्पिटिटर खुश, बराबर है? तो एकदम मेजर इंपैक्ट ना ये हुआ। सबसे पहला मेजर इंपैक्ट वर्कर यानी किस पे? बोलो। यानी इसीलिए हमेशा बोलते हैं स्टेक होल्डर्स आर पार्टीज हु गेट अफेक्टेड बाय डिसीजन टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ओके है क्या आपको विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेक होल्डर, या इसमें कोई प्रॉब्लम है बॉस? बोलो बोलो बोलो। ये ओके है। टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर में सबसे पहले ये इंटरनल स्टेक होल्डर दिख रहे क्या? डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, बराबर है ना? डायरेक्टर या एम्प्लॉय। इंटरनली ये दो लोग हैं जो सबसे पहले फायरिंग लाइन पे आएंगे, बराबर है? फिर हल्का फायरिंग लाइन शेयर होल्डर, डेट होल्डर, सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर पे होगा, बराबर है क्या? इनको बोलते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। सबसे पहली गोलियां चलती है किसके ऊपर? डायरेक्टर, एम्प्लॉय। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर किसका है? शेयर होल्डर, सप्लायर, डेट होल्डर, कस्टमर और कंप्यूटर। इनको डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, बट एम्प्लॉय और डायरेक्टर से थोड़ा लेस इंपैक्ट होता है। फिर उसके बाद करेक्ट लास्ट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, बाहर वाले। अब आपने एक साथ 500 वर्कर्स को फायर कर दिया, विल द वर्कर्स भी हैप्पी? थोड़ा सोचो। वर्कर हैप्पी रहेंगे ना, वो बोलेंगे अच्छा कि हमको निकाल दिया, या वो जाएंगे गवर्नमेंट के पास? बोलो। No. They will go to the government, they will do some what? Tell me. They will be have an agitation against it. कुछ ना कुछ they will try to revolt against it, right? तो गवर्नमेंट विल गेट इन्वॉल्व इन दिस, राइट? क्या होगा? गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ना जनरली क्या होता है ना, वॉट एवर डिसीजन यू मेक उसका इंपैक्ट अगर खराब है, राइट, तो गवर्नमेंट का आपके इसमें इंपैक्ट या गवर्नमेंट पे इंपैक्ट आएगा, या अदर वे राउंड। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट या लॉ मेकर और रेगुलेटर दोनों, अब क्या हुआ? 500 लोगों को आपने एक साथ फायर किया, तो गवर्नमेंट लॉ बना सकता है क्या रेगुलेटर्स के थ्रू या लॉ मेकर्स के थ्रू के बॉस ऐसा 500, यानी अगर आप 1000 लोग कर रहे हैं ना, तो एक साथ आप खाली 10% लोगों को फायर कर सकते हैं, ऐसा 50% लोगों को फायर नहीं कर सकते। लेबर लॉ में है ऐसा सब, अगर आपने जाके देखा तो अगर आपने मास फायरिंग किया तो आपको लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। वो सब गवर्नमेंट रूल निकालता है, ये सब पता चलने के बाद, राइट? दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, गवर्नमेंट या लॉ मेकर्स हैविंग एन इंपैक्ट ऑन यू। उल्टा बोल रहा हूं, राइट? आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, और गवर्नमेंट यानी वो जो थैली होती है ना प्लास्टिक की, राइट, पन्नी, थैली, वॉट एवर यू कॉल इट, करेक्ट, अ प्लास्टिक बैग, राइट, you are into manufacturing of that and government makes a regulation कि boss you cannot produce what? Plastic bags at all, or plastic bags are banned. In that case
आपके स्टेक होल्डर ने ऐसा एक डिसीजन लिया है विच लीड्स टू व्हाट, टेल मी, क्लोजर ऑफ योर बिजनेस। हो सकता है कि ऐसा बोलो, हो सकता है। फिर तुम्हारे 500 वर्कर जिनको फायर किया है, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा लेबर यूनियन का एसोसिएशन बना लिया, कोई एक नेता चूज किया, तुम हमारे नेता हो, राइट, जाके प्रेशर डालो कंपनी पे कि हम 500 लोगों को फायर किया है तो हम सबको क्या करें, वापस काम पे बुलाए, ये हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। ऐसा सब सुना है आपने? लेबर यूनियन, प्रेशर ग्रुप्स, बराबर है क्या? गवर्नमेंट, लॉ मेकर्स, और लास्ट, अब आप 500 लोगों को, 500 पीपल, राइट, गेट फायर्ड फ्रॉम अ जॉब, राइट। आपको क्या लगता है, एक पूरा इकोनॉमी, एक पूरी बस्ती में 1000 लोग रहते थे, आपने आधे लोगों को क्या कर दिया, फायर कर दिया। आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा सोसाइटी एट लार्ज पे इंपैक्ट आएगा? लोगों के घर बार चलना बंद हो जाएंगे, राइट, सैलरी नहीं आएगी तो काम रुक जाएगा। क्या बोलते हो, सही है क्या? तो आर वी ओके विथ हु आर एक्सटर्नल, हु आर इंटरनल कनेक्टेड एंड हु आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स? कोई टेंशन है बॉस, एक बार देख लो, कुछ अगर डाउट है तो आप भी पूछो मेरे को, बोलो। प्रियांशी क्या लगता है कि मैं, क्या लगता है बेटा? All clear. ओके, मानसी, दोनों मानसी, हर्ष, All clear. हर्ष ओके क्या? ऐसा Yes, sir. सोचा था कि आपने इतना, कि इसका भी एक एग्जाम्पल बन सकता है कि ये स्टेक होल्डर है बॉस, Sir. लेकिन ये अब याद रह जाएगा क्या विद दिस एग्जाम्पल? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अभी क्या है ना, एग्जामिनर ना आपके साथ खेल सकता है। एग्जामिनर क्या करेगा, ही हैज गिवन व्हाट, स्टेक होल्डर का क्लासिफिकेशन इन 3 वेज, इंटरनल, कनेक्टेड और एक्सटर्नल, बराबर है। कभी कभी ना वो यू टर्न लेता है ऐसे वहां से, और बोलेगा कि खाली 2 टाइप है। कौन से 2 टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। इन दैट केस सर ये कनेक्टेड का क्या करेंगे, कनेक्टेड का क्या करेंगे सर, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स आर व्हाट, बोलो क्या है, एक्सटर्नल में काउंट होते हैं। मतलब अगर आपको पूछा ना कि शेयर होल्डर की, एक क्वेश्चन पूछा, प्लीज टेल अस दैट शेयर होल्डर इज व्हाट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर, इज इट एन इंटरनल, इज एन इंटरनल स्टेक होल्डर और एन एक्सटर्नल? सर ने तो बोला था कनेक्टेड, बराबर है। ये पूछ रहे इंटरनल एक्सटर्नल, कनेक्टेड तो ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि कनेक्टेड भी कहां आएगा, बोलो, एक्सटर्नल, External. External. बराबर है। तो आपको क्वेश्चन पूछा कॉम्पिटिटर कौन से टाइप का स्टेक होल्डर है, खाली 2 ही ऑप्शन दिए, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल। बट आपको पूछा इंटरनल, कनेक्टेड या एक्सटर्नल, तो कनेक्टेड। समझ में आ रहा है? अब ये सारे स्टेक होल्डर जो भी ये 10-12 नाम है, करेक्ट, आर दे ऑल ओनर्स ऑफ द कंपनी और नॉट ओनर ऑफ द कंपनी? दैट मीन्स आर दे शेयर होल्डर्स और नॉट शेयर होल्डर? थोड़ा सोच के बताओ। ऑल शेयर होल्डर्स, देखो शांति से, ऑल स्टेक होल्डर्स आर दे शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी, बोलो। स्टेक होल्डर क्या होते हैं, खाली वो लोग जिनका क्या होता है, सम डिसीजन टेकन बाय द कंपनी इफेक्ट होता है, दे डोंट हैव ओनरशिप। ऑल शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स, बट ऑल स्टेक होल्डर्स आर नॉट शेयर होल्डर्स। देख लो ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन, ओके होगा तो ठीक है, एक पेज छोड़ दो लिए लिखने के लिए, होमवर्क में लिख देता हूं। क्या है होमवर्क में, स्टेक होल्डर थियरी आपके ग्रुप में डाल दूंगा। स्टेक होल्डर थियरी अपने को नोट लिखने का है, प्लस आपको क्या है, टीएसआर के क्वेश्चंस, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन टीएसआर के। यहां तक आपको ओके है क्या? तो मैं आगे बढ़ू, बोलो। एक पेज छोड़ दो, स्टेक होल्डर, लास्ट एजेंसी थियरी, ये भी लिख लेना बाद में, एजेंसी थियरी इधर डाल देता हूं होमवर्क में। एजेंसी थियरी
गोल कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना, इधर गोल कॉन्ग्रुएंस में ना। चलो लास्ट थियरी टॉपिक बिफोर वी गो इनटू व्हाट, और तीन चार चीजें हैं क्या थियरी में, एक मिनट आ जाओ जरा, यहां तक अपना हो जाएगा आज एजेंसी थियरी तक। मैनेजरियल रेम्युनरेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नॉट फॉर प्रॉफिट, वो कल करेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ एजेंसी थियरी में आ जाओ। एजेंसी थियरी का ना मेरे को ज्यादा टेंशन लगता नहीं, क्यों मैं बताता हूं। एजेंसी थियरी का बेस्ट एग्जांपल है टू रिमेंबर एजेंसी थियरी। देखो ऑलमोस्ट आप, हाउ मेनी ऑफ यू आर बिलो 20-21 ईयर्स एज, बोलो 18, 19, 20, 21, ऐसी एज में कौन है, रेज योर हैंड्स। 21 से लो, हाँ श्रेया है, ठीक है, किमया है, हाँ दिगंत है। अभी देखो मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। आप जा रहे एक आधा टू व्हीलर पे चलाते हुए, किधर तो रास्ते पे, राइट, एंड यू डैश समवन, राइट, किसी की तो फोर व्हीलर में यू डैश्ड, राइट। और क्या होगा इस केस में, अगर एक कुछ छोटा एक्सीडेंट हो गया, राइट, काम किसने किया, आपने डैश किया, लेकिन अगर पुलिस केस या ऐसा कुछ होता है तो किसके नाम पे केस होगा बॉस, या कुछ पापा। कार मुआवजा ओनर्स, देना बाइक है, ओनर्स, राइट। हाँ 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 बाइक हाँ। ओनर्स। भाई कॉर्नर कौन है, या तो मम्मी नहीं तो डैडी। आयुषी ने तुरंत बोला पापा, राइट, तुरंत पापा को फोन लगाया जाएगा, ऐसा ऐसा हुआ है, पैसा देना है। देखो काम किसने किया, आपने किया, बराबर है, लेकिन ओनर कौन है गाड़ी का, बोलो पापा, करेक्ट। पैसे कौन देगा, पापा, राइट। काम कांड किसने किया है, बोलो आपने, लेकिन पैसे पापा देंगे क्या, बोलो। ऐसा ही एजेंसी थ्योरी है, बॉस ओनर कौन है, owner of the company is your father, owner of the two wheeler, you are just mere appointed agents of your parents. If you do anything, right, with the liberty or with the assets given to you, responsible कौन है, बोलो पिताश्री, बराबर है। एजेंसी तेरे में ये होता है, तो आपको क्या लगता है, अरे पप्पा की तो गाड़ी है, ठोक देते हैं यहाँ वहां, ऐसा करना नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है तो कुछ भी हुआ तो आपको क्या लगता है, पेरेंट्स है देख लेंगे, राइट। ये वाला एटीट्यूड डायरेक्टर्स भी ले सकते क्या, देखो डायरेक्टर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, बट कैन दे कम एवरी डे इनटू द बिजनेस एंड रन द बिजनेस, नो, दे अपॉइंट डायरेक्टर्स और मैनेजर्स और एजेंट्स टू वर्क ऑन देयर बिहाफ, बराबर है, राइट, एंड टू वर्क विथ व्हाट, थर्ड पार्टी। अब आप देखते हैं अपने इधर भी कैसा है, कॉर्पोरेट एजुटेक रहता है, क्या करता है, बोलो, अरे सब मैनेजर आपसे बात करेगा, सेल्स वाला आपसे बात करेगा, हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, क्या वो तुमको ये भी बोलते हैं ना, क्या वो जॉब कितने 50 लाख की जॉब लगेगी, 40 लाख की जॉब लगेगी, 10 लाख की, 20 लाख की, राइट। हैव यू हर्ड ऑल दो स्टोरीज, बोलो। एंड में रिस्पॉन्सिबल कौन है, बोलो इक्विटी शेयर होल्डर। डायरेक्टर या मैनेजर क्या करेगा, आपको सब प्रॉमिस करेगा, ये दिएगा। बहुत लोगों ने ऐसे उस प्रॉमिस के साथ रजिस्टर किया है क्या आईसीसीए में, सच में बोलना, इतना, हाँ जॉब मिलेगा, उतना जॉब मिलेगा, आपने देखा है क्या किसी को मिलते हुए ऐसे 50 लाख, 40 लाख, ऐसे देखा है क्या, ओपनिंग जॉब है, 10 लाख, 10 लाख भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10, 12 लाख, 15 लाख, No, sir. नहीं ना, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन अपने इधर सेट ही बराबर नहीं है ना। आपको क्या लगता है, योर टिकट टू व्हाट, क्या बोल के, क्या यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन क्या 180 कंट्रीज, बराबर है ना, ऐसा करके भी बेचा है किसी ने आपको, हाँ सर। Yes, sir. हाँ बेचा है सर, ना, बोला है बहुतों ने। बोलिए सर इसे। बोलते हैं ना, फिर अरे मैडम हमको सब मालूम है, राइट। फॉल्स प्रोमिस तो इतने किए जाते हैं बिहाइंड। मैं ये नहीं बोल रहा कि अरे मतलब आपको एकदम, मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका लॉन्च पैड बहुत बढ़िया रहेगा, आपने काम अच्छा किया, राइट। मेरे स्टूडेंट्स हैं ईवाई में, केपीएमजी में, बहुत सारी जगहों पे, पीडब्ल्यूसी में, बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट्स हैं, राइट। बट गलत एक्सपेक्टेशन अगर आप सेट करोगे ना, वो सिटी के हिसाब से भी है, अगर आप कोई टीयर 1 सिटी में हो तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में उतने अपॉर्चुनिटीज आपको, वो पे लेवल के अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगे नहीं, राइट। तो ऐसा अगर किसी ने आपको बेचा तो रिस्पॉन्सिबल तो ओनर है, क्यों,
क्योंकि उसने कुछ गलत प्रॉमिस किया है, बराबर है क्या? पैसा कौन देगा आपका वापस? ओनर, बराबर है। डायरेक्टर या एजेंट, राइट, आपको सारा कुछ प्रॉमिस करेंगे, बट लायबिलिटी किसकी है? थर्ड पार्टी के साथ, शेयर होल्डर या प्रिंसिपल की। इसमें कोई डाउट आपको एजेंसी थ्योरी? इस प्लेस में यहां बोलते हैं कि इसीलिए आपने डायरेक्टर और शेयर होल्डर ना हमेशा एक पेज पे रहने मांगते हैं। गोल कॉन्ग्रुएंस ना ऐसे जनरली ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस का, कि जैसा डायरेक्टर सोचता है ना वैसा ही शेयर होल्डर ने, या जैसा शेयर होल्डर सोचता है ना वैसा ही डायरेक्टर, जैसा शेयर होल्डर डायरेक्टर, शेयर होल्डर डायरेक्टर, उनके कॉन्ग्रुएंस में गोल होने चाहिए। ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेयर होल्डर सोचता है 10 लाख कमाएंगे, राइट, और डायरेक्टर बोलता है 1 लाख ही कमाएंगे। नहीं, 10 लाख तो 10 लाख, डायरेक्टर ने ऐसा नहीं करना, बराबर है। तो रिस्क लेने के लिए रेडी रहना। अब देखो, शेयर होल्डर का पैसा लगा है और आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर बहुत प्रेशर डालोगे क्या पैसा कमाने के लिए? आप थोड़ा सोचो, राइट। इंडियन सिस्टम में तो बहुत होता है, अगर आप किसी को, आप कोई मैनेजर हो या डायरेक्टर हो, तो बहुत टेंशन में देखा है क्या आपने डायरेक्टर या मैनेजर को? थोड़ा सोचो। हमेशा टारगेट के पीछे भागने वाला आदमी कौन होता है? डायरेक्टर या मैनेजर। उसी के ऊपर सारे टारगेट का टेंशन रहता है। तो वो क्या करता है, राइट, उसी ने सारा शेयर होल्डर का भार उठाना है। तो गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर शुड हैव देयर गोल्स अलाइंड एंड देयर शुड बी गोल कॉन्ग्रुएंस। अब क्या होता है जनरली, डायरेक्टर क्या सोचता है, मेरी तो सैलरी देखो, एक डायरेक्टर या एम्प्लॉय आप कितना भी काम कर लो, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है क्या? अगर कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ तो आपकी सैलरी भी उतने से बढ़ने वाली क्या? बढ़ती क्या सैलरी वैसे? ऐसे बहुत कंपनी ने ये बार बहुत अच्छा काम किया, क्या बोलते हो श्रेया? नहीं सर, नहीं बढ़ेगी वैसे। नहीं बढ़ेगी। तो उसने बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्क लिया तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा, बट उसको शायद रिटर्न मिले तो ठीक है। क्या होता ना, उसको लगता है यार कमाना तो सब शेयर होल्डर है, मेरे को तो मेरी फिक्स सैलरी मिल रही है। इन दैट केस, राइट, तो ऐसा काम है। देर इज अ लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, राइट, दैट इज गोल्स आर नॉट इन लाइन बिटवीन शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर। ओके क्या? आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड या रिटर्न मिलना चाहिए लॉजिकली। जितना कम रिस्क लोगे उतना ज्यादा या उतना कम रिटर्न आपको मिलेगा, ऐसा है। तो ये एजेंसी थ्योरी का पार्ट है, जो बेसिक एजेंसी थ्योरी का पार्ट है। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। खाली एक लास्ट पार्ट, इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये एक टेबल बना लो, फिर आपको छोड़ देता हूं। बना लेते क्या एक टेबल? लिखो बेसिक इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ओवरव्यू। पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये टेबल में है, यानी चैप्टर 2, 3, 4, 5, बराबर ना? या 2, 3, 4, 5, 6 ये इस टेबल में है। मैप कर लेते क्या? लिख लेते फटाफट, फिर आपको छोड़ देता हूं। कल अपने को स्टार्ट करने का ये 4 मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये वाला पार्ट कल स्टार्ट होगा। ये कल ROC, पे बैक पीरियड, NPV, IRR, ये सब कल स्टार्ट होगा। कर लेते, चलो फटाफट ड्रॉ कर लो। 2 टेबल है, इसके बाद एक और टेबल है। नहीं तो ये कर लो, दूसरा टेबल कल करेंगे। ये कर लो फटाफट, मेरे को कुछ बताना है इस टेबल में, इसलिए बोल रहा हूं कि प्लीज। इधर है फॉर्मेट ऑफ NPV, मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन, रिलेवेंट कैश फ्लोस, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट,
टैक्स, एंड ये टीएस ऑन टीएडी है, अभी लिख लो ऐसे, टीएस कैपिटल में ऑन टीएडी, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड स्क्रैप वैल्यू है, आई आई एन एस वी। ये WCI मतलब वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और ये डिस्काउंटिंग रेट परसेंटेज। सर थोड़ा सा जूम करिए ना। हाँ, पहले आप ये दो पार्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है? दिख रहा है कि आपको ये दो पार्ट पूरे? ये लिखने का कुछ कारण है, ठीक है, बताता हूं मैं आपको। ये 3 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अंडर अनसर्टेनिटी, इधर से डायरेक्ट ट्रेन ना, इधर इन्वेस्ट चैप्टर 6 में जाएगी, चैप्टर 4 से। सर ये बेसिक में सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा है? बेसिक में सेकंड पॉइंट सेकंड पे पॉइंट पे। एन्युटीज एंड परपेचुटीज, अच्छा। एन्युटीज एंड परपेचुटीज, ये एन्युटीज एंड परपेचुटीज और एडवांस कंसेप्ट्स। द अंडर अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट है ना, सेकंड वाला, उसमें ये सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी एनालिसिस, ओके ओके। सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिमुलेशन और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन प्लस कैपिटल रैशनिंग, या कैपिटल रैशनिंग, RATION, रैशनिंग में लीज वर्सेस बाय, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एंड EAB, लीज वर्सेस बाय, EAC एंड EAB, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एंड इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट। फिर है कैपिटल रैशनिंग, सर एक क्वेश्चन था। हाँ वो गोल कॉन्फ्रेंस आपने बताया था ना, वो डिसाइड हाँ, कैसे होता है एक्चुअली, क्योंकि डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं में बहुत कुछ डिस्कस डिफिकल्ट है करते वो, एक्चुअली ना एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव हैं। नहीं। अच्छा। गोल कॉन्ग्रेंस मतलब क्या, ये बोलेंगे देखो, जनरली क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर सोचता है आज $100 आई हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, आफ्टर 5 years आई वांट दिस टू बी $300, बराबर है ना? तो दिस इज हाँ। कम्युनिकेटेड टू डायरेक्टर्स, बट डायरेक्टर क्या बोलता है, मैं 300 पे ले जाऊं, 500 पे ले जाऊं, या 50 पे ले जाऊं, मेरे को तो मेरी सैलरी मिलने वाली है, बराबर है? आई एम ओनली थिंकिंग व्हाट, हर ईयर मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी, बराबर है ना?
मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्या कि 3 साल या 5 साल के बाद जो शेयर होल्डर को चाहिए वही मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट ओके। क्या है, मैं ज्यादा सेल करूंगा तो मेरे को ज्यादा क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, ऐसा ईएम। होगा तो फिर मैं कर सकता हूँ। नहीं तो मेरी तो सैलरी सेम है, मैं हर साल मेरी सैलरी 10-20% कैसे बढ़ेगी वो देखूंगा, रादर देन शेयर का वैल्यू क्या है। बराबर है ना? ओके। लिख लिया क्या? प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, ये भी बढ़िया टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। लीज वर्सेस बाय। अब देखो मेरे को बोलना क्या था वो मेरे को एक बार बोल देने दो तो आपको छोड़ देता हूं, ठीक है? देखो ये फुल फ्लेज एनपीवी टॉपिक दिख रहा है आपको, दिस, राइट? ये मैंने लिखा, देखो देखो सेक्शन सी क्वेश्चन या तो यहां से आता है या ये एक बॉक्स बनाया मैंने, राइट? आप भी ऐसा ही बॉक्स बनाओ, ये फुल फ्लेज एनपीवी एक बॉक्स और ये प्रोबेबिलिटी एनालिसिस को पकड़ के लीज वर्सेस बाय ईएससी कैपिटल रैशनिंग ये एक बॉक्स। एग्जामिनर ना, मैंने आपको कल बोला था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हैज अ 20 मार्कर श्योर शॉट, राइट? अब आप देखोगे ना क्लासिकली फुल फ्लेज एनपीवी इज समथिंग दैट द एग्जामिनर आस्क्स एवरी टाइम, राइट? बट सर एवरी टाइम थोड़ी ऐसा रहता है, हमारे तो फ्रेंड्स ने बोला था फुल फ्लेज एनपीवी नहीं आया। 2 सेट बनते पेपर के, कितने? 2, कभी कभी 3 भी बनते, राइट? 3 में से 2 या 2 में से दोनों सेट में क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। बच्चे क्या करते मालूम है क्या? अरे फुल फ्लेज एनपीवी, फुल फ्लेज एनपीवी, फुल फ्लेज एनपीवी, अरे सर वही आएगा। एग्जामिनर का फेवरेट भी वो है। आपका नसीब खराब है, 50% प्रोबेबिलिटी है आपको सेक्शन सी का क्वेश्चन यहां से आने का और 50% प्रोबेबिलिटी है आपको सेक्शन सी का क्वेश्चन यहां से आने का। मतलब क्या आपने खाली फुल फ्लेज एनपी पे फोकस करना चाहिए या प्रोबेबिलिटी, लीज वर्सेस बाय, ईएसी, कैपिटल रैशनिंग, इस पे फोकस करना चाहिए? थोड़ा सोच के बोलो। दोनों पे। इक्वली क्या करना चाहिए बोलो? दोनों को इक्वल वेटेज देना चाहिए। बराबर है क्या? जनरली मैंने देखा है 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तो सर आप पागल हो जाओगे, आप बहुत बच्चे क्या करते हैं फुल फ्लेज एनपी पे इतना पागल हो जाते हैं, वही करके जाते हैं लीज वर्सेस बाय, ईएसी, कैपिटल रैशनिंग, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, इस पे जाते ही नहीं। क्या मालूम क्यों, काय को क्या रीजन है मेरे को मालूम नहीं। बट अगर आप मेरे पास आए हो तो ये 2 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% दिखेगा, 100 नहीं 200% दिखेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो सेक्शन सी में पूछना पूछना ही है। अगर आपका नसीब वाहियात नसीब है, ठीक है, कि 10 अटेम्प्ट में एक आधा अटेम्प्ट आपका, 10-15 अटेम्प्ट में एक आधा अटेम्प्ट आपका आया है कि जिसमें इसमें कैसे क्वेश्चन ही नहीं है, राइट? तो मैं आपको बोलूंगा कि बाकी 2 के क्वेश्चन तो और भी इजी है। इधर आपको एनपीवी में या लीज वर्सेस बाय में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, करेक्ट? बाकी 2 जो है वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो तो और भी लल्ला है, करेक्ट? उसके 4-4 क्वेश्चन आप हर इसके कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो प्रे करो कि ये आए, ठीक है? इसमें से इन दोनों में से कोई भी आए तो यू आर इक्वली प्रिपेयर्ड। अपने नोट्स इतने एक्सटेंसिव है ना कि मैंने हर जो पुराने क्वेश्चंस निकल भी गए हैं कुछ कुछ बुक्स में से, वो भी मैंने अपने नोट्स में एडेड है। तो आपको एक एडेड एडवांटेज इसमें रहेगा सारे टॉपिक्स में, ठीक है? पुराने पुराने पेपर्स के पुराने पुराने क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके है, कोई प्रॉब्लम बोलो? तो कैन वी रैप इट अप फॉर टुडे? सॉरी जरा थोड़ी तबीयत खराब है, राइट? नहीं तो मैं आज आरओसी कंप्लीट कर देता, राइट? आज आरओसी पक्का हो जाता और शायद पेबैक पीरियड में एंट्री हो जाती। अब कल शायद आरओसी हो जाएगा, पेबैक पीरियड हो जाएगा, फिर मैं एंटर एनपीवी, करेक्ट? यानी डिस्काउंटिंग पहले करना पड़ेगा, राइट? तो कल का टेबल भी मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, आप होमवर्क में लिख के आ जाना बॉस, करेक्ट? ये बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मेन टेबल है, इधर सर मैं आज पेस्ट वाला कर रहा हूँ। क्लास रिकॉर्डेड ना अपलोड होगा क्या यूट्यूब पर? हाँ हाँ होगा ना, यूट्यूब पे ही होगा सर, टेंशन मत लीजिए, ओके ओके। ठीक है? ये दूसरा टेबल है, ये मैं दे देता हूँ, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मेन टेबल, आप आज होमवर्क में करके आइए,
ठीक है, मैंने होमवर्क भी लिख दिया है सारा, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो ना। रियो प्ले पे अपडेटेड मतलब ये वाले बैच के लेक्चर्स कहाँ पर आएंगे? मतलब उसका सेक्शन अलग होगा कि नई सीरियल की आएगी या उसी में मिलेगा मुझे? उसका थोड़ा आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ कल, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलेगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, देन कैन वी रैप इट अप फॉर टुडे। आप ये वाला टेबल बना लेंगे आज? ये देखो मैंने यस डाल दिया है, और मैं अभी व्हाट्सएप मैसेज भी शूट कर रहा हूँ, उसमें भी डाल दिया है आज का होमवर्क क्या है, और नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए, देख लो एक बार, चेक कर लो, आपको होमवर्क भी आ गया है, प्लस नोट्स भी दे दिए मैंने। तो उसी नोट्स में से आपको क्या है, स्टेक होल्डर थ्योरी, एजेंसी थ्योरी, गोल कॉन्ग्रुएंस और बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टेबल नोट्स में लिखना है, और टीएसआर का क्वेश्चन होमवर्क में वो भी करना है, चलेगा ना? देख लो एक बार यस प्लीज। फिर कैन वी रैप इट अप फॉर टुडे। सॉरी फॉर क्या है, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, राइट, तो जितना हो पाया उतना ले लिया, अभी थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, तो आज गोली खा के कल ओके हो जाएंगे, कल पूरी क्लास होगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। इन द वीकेंड आई विल गिव यू, मैंने आपको बोला था जो स्केड्यूल के बारे में बात की थी, वो पूरा स्केड्यूल आपको मैं दे दूंगा, एक 15-20 दिन, महीने भर का, कि कहाँ तक क्या क्या होगा, कैसे होगा, राइट। रोज का हम टारगेट सेट करेंगे और उस हिसाब से टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। आपका जो है जल्दी से जल्दी पोर्शन खत्म करेंगे, और वो थियोरी वाला पार्ट जो मैंने बोला वो हम लोग एंड में करेंगे, जो अपना डिसाइड हुआ है। फिर भी अगर आपको लगता है बीच में कि नहीं सर बहुत प्रैक्टिकल हो गया, तो वी कैन चेंज द शेड्यूल, थोड़ा सा एक्सेल शीट में चेंज कर देंगे, बट एक्सेल शीट में आपको नेक्स्ट वीक तक शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। चले फिर, बाय बाय, गुड नाइट, वी विल मीट अप टुमारो 6:30, टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय। थैंक यू सर। थैंक